various examples relevant to the topic of equilibrium of a rigid body in 3 dimensions. Let us now focus on the exercise problems now, starting with problem 5-69, in which a shaft is being supported by 3 general bearings at point A, B, and C as shown to you in the figure. We need to determine the components of reaction at these forces. So I hope कि figure visible है तमाम लोगों को. जी, is the figure visible to all of you? Yes, sir. चलें, so let us start with the. जी पूछें, कुछ पूछना चाह रहे हैं? Okay, so we have 3 general bearings A, B और C के ऊपर जो लगे हुए हैं. So starting our discussion regarding the support reactions at A, और मैं अभी सिर्फ translation की बात कर रहा हूँ. What type of support reactions should we get at point A? Yes, AX और AZ. AX और AZ हमें support reactions मिल जाएंगे point A के ऊपर because this general bearing is being supported along the y-axis. Okay, moving to point B, we are going to get, since this general bearing at B is also mounted along the same axis, so I'm going to get 2 types of support reactions here. One is BX, the second one is BZ. ये 2 support reactions मुझे point B के ऊपर मिल गए. Now moving to the third support at C. ये जनरल बेयरिंग जो C पे लगा हुआ है, ये किस एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है? सर एक्स एक्सिस. सर Y और Z. तो हमें जो रिएक्शंस मिलेंगे वो Y और Z के अलोंग मिलेंगे. So I'm going to get these 2 support reactions. One is CZ, the other one is CY. इसके अलावा मेरे पास 4 अदद अप्लाइड फोर्सेस हैं, 500, 600 एंड 450 न्यूटन एंड 900 न्यूटन. ये 4 फोर्सेस हैं जो इन पॉइंट्स के ऊपर अप्लाई की जा रही हैं. नंबर ऑफ अननोन्स कितने बन गए अभी तक? 6 अननोन्स बन गए. तो क्या ये जनरल बेयरिंग्स के लिए मैं कपल मोमेंट्स जो रेस्ट्रिक्ट हो रही हैं उनको भी शो करूंगा? नो सर. द रीजन बीइंग के ऑलरेडी ये 3 बेयरिंग जो है ये इस शाफ्ट को कंप्लीटली कंस्ट्रेन कर रहे हैं, इसकी तमाम रिस्ट्रिक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है अलग से कपल मोमेंट्स को शो करने की. अदरवाइज द नंबर ऑफ जो अननोन्स हैं दे आर गोइंग टू बिकम 12 व्हिच कैन नॉट बी सॉल्व्ड यूजिंग 6 इक्वेशंस. सो आपके पास टोटल ये 6 इक्वेशंस हैं और 6 अननोन्स आपके पास आए हैं. इनको आप सॉल्व कर सकते हैं यूनिकली. सो स्टार्टिंग विद द फोर्स समेशन इक्वेशन, summation fx equal to 0. The forces which are acting along x-axis is ax, एक force ax है, साथ में आपके पास bx दूसरी force है जो x-axis के along act कर रही है. Then you have an applied force of 500 Newton being applied along the negative x-axis. So I'm going to use that 500 here in this equation. So मेरी equation number 1 complete हो जाएगी जिसमें ax, bx और 500 न्यूटन वाली फोर्स जो है उसको मैंने शामिल किया है. आई होप कि इक्वेशन 1 इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes. Okay, moving to the y equation, summation y equation. What are the forces which you can identify acting along the y axis? CY और minus 450. Ty minus 450 should be equal to 0. Let me call it as equation number 2. Okay, moving forward, the third force equation is going to be summation Fz equal to 0. And the forces which we are going to include in this equation are Az plus Bz plus Cz. 3 तो ये support reactions आ गए. इसके अलावा आपके पास minus 600, minus 900 ये 2 forces भी आएंगी जिनको आप शामिल करेंगे. And that should be equal to 0. Let me call it as equation number 3. So these are the 3 force equations. Moving towards the moment equation, आपके पास जो moment equations हैं starting with summation mx equal to 0. Would ax
or AZ create any moment about x-axis? No, sir. Because they are passing through the x-axis. Would BX create any moment about x-axis? No, sir. It is parallel to x-axis. It's parallel to x-axis. What about BZ? Yes, sir. What is the perpendicular distance? Sir, 1.8. 1.8. And it would create clockwise or counterclockwise moment? Sir, counterclockwise. Counterclockwise moment. So आपने इसको positive sign के साथ represent कर लिए. Moving towards CY, would it create any moment about x-axis? Yes, sir. Are Sir, you no, sure? it is. Sir, no. It is passing through that x-axis. Okay, what about CZ? Yes, sir. What is the perpendicular distance of CZ from the x-axis? Sir, 2.7. 2.7. And CZ would create clockwise moment or counterclockwise moment? Counterclockwise. Counterclockwise moment. तो आपने support reactions के हवाले से जो moments आ रही थी x-axis वो तो लिख ली. Okay, now moving to the applied forces. 500 न्यूटन की आपके पास force है. Would it create moment about x-axis? 900 न्यूटन भी तो बनाएगा नहीं mx पे moment. अभी हम एक करके चल रहे हैं ना. अभी तो हमने पहले सपोर्ट रिएक्शंस देखे हैं. अब अप्लाइड फोर्सेस की बात करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम 500 न्यूटन फोर्स. वुड इट क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस? No, sir. No, sir. नो. व्हाट अबाउट दिस 600 न्यूटन फोर्स? वुड इट क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस? Yes, sir. 0.9. Yes, sir. इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 0.9 मिलेगा. और क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज? Clockwise, sir. Clockwise. So we are going to add a negative sign here. Okay, now moving to that 900 Newton force. ठीक है, 900 Newton force definitely moment बनाएगी x axis के about. इसका perpendicular distance कितना होगा? 2.7. Clockwise, counter clockwise? Sir, clockwise. Clockwise. So इसको भी मैंने negative sign के साथ यहाँ represent कर लिए. ठीक है. और कोई force जो आपके ख्याल में moment बनाएगी x axis के along? 450 नहीं बनाएगी क्योंकि वो मीट करेगी एक्स एक्सिस पे जाके. अच्छा जी, यही मैं पूछना चाह रहा था. आपके ख्याल में 450 न्यूटन की जो अप्लाइड फोर्स है, वुड इट क्रिएट सम मोमेंट अबाउट एक्स एक्सिस और नॉट? नहीं 0.6 मीटर डिस्टेंस है. अच्छा चलें, एक छोटा सा कंपैरिजन करके मुझे बताएं. अभी तमाम स्टूडेंट थोड़ा सा खामोश हैं. मैं आपसे एक कंपैरिजन पूछ रहा हूँ. अभी आपने CY की बात की थी कि CY मोमेंट नहीं बनाएगी. CY और 450 न्यूटन की फोर्सेस में फर्क क्या है दोनों में? CY क्यों मोमेंट नहीं बनाएगी और 450 क्यों मोमेंट बनाएगी? सर वो अबव लेवल 0.6 मीटर अबव x एक्सिस है. सर CY एक्सिस इसको पास करता है. अगर मैं CY को एक्सटेंड करूं तो इट वुड पास थ्रू x एक्सिस, इजंट इट? यस सर, CY एक्सिस को पास करेगी. तो इसलिए CY मोमेंट नहीं बनाएगी. 450 न्यूटन फोर्स जो है, ऑल्दो इट इज पैरेलल टू CY, यानी y एक्सिस के अलोंग ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे ऑफसेट है फ्रॉम द x एक्सिस. तो क्या ये मोमेंट बनाएगी या नहीं? बनाएगी सर. बनाएगी. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? 0.6 होगा. 0.6 फ्रॉम द x एक्सिस. क्या ये क्लॉकवाइज मोमेंट बनाएगी और काउंटर क्लॉकवाइज? और मैं इसको किस तरह जज करूं? काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज. काउंटर क्लॉकवाइज. और ये मैं कहां से देखते हुए बता रहा हूं? कौन सा व्यू है ये? फ्रंट व्यू. अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़े होकर देखूं तो बेसिकली मुझे ये इस तरह नजर आएगी कि ये मेरे पास YZ प्लेन है और उसके अंदर ये फोर्स जो है वो मोमेंट बना रही है. आई होप कि ये 450 वाली फोर्स का हर एक को समझ आ गया है. कोई डाउट किसी का इस 450 न्यूटन के मोमेंट के हवाले से? No, sir. चलिए. So moving forward to the next equation, which is summation my equal to 0. That is, we are going to take moments now about the y-axis. As discussed, AX और AZ y-axis के about moment बनाएंगी क्या? नहीं सर. No, Same sir. similarly, BX and BZ
No, sir. नो सर, No, ये sir. व्हाट अबाउट CZ? सीजी बनाएगी सर, ये बनाएगी। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है? 1.8 सर, 1.8। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव लिख दिया। व्हाट अबाउट CY? सी वैसे पैरेलल है, नहीं नहीं बनेगी, बनाएगी। Parallel to y axis, so it would not create any moment. Okay, now coming to the applied forces, would this 500 Newton applied force create a moment about y axis? नो सर, No, because it is passing through y axis. What about 600 Newton force? यस सर, इसका perpendicular distance 0.6 है y axis से, और clockwise counter clockwise? काउंटर क्लॉकवाइज, Counter clockwise, so I'm going to include it with a positive sign. What about this 450 Newton force? Would it create any moment about the y axis? सर पैरेलल है, नहीं पैरेलल है, नहीं बनाएगी। What about this 900 Newton force? यस सर, ओके, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.9 आ जाएगा, और क्लॉकवाइज होगा काउंटर क्लॉकवाइज होगा? 3 क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा, सो इसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ शो कर लिया है। सो दिस वुड बी माय इक्वेशन नंबर 5। ऐसे ही है, कोई चीज भूले तो नहीं है आप? नहीं सर, Okay, summation mz equal to 0. Ax, Az would not create any moment about z axis. Similarly, Bz would not create any moment about z axis. What about Bx? Would it create any moment? यस सर, 1.8 इसका मोमेंट आर्म बन जाएगा, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो आपने नेगेटिव साइन यहाँ डाल दिया। ओके, Cz would create any moment about z axis. नो सर, Cy would create any moment about z axis. यस सर, Okay, what is the perpendicular distance of Cy from the z axis? 1.8 सर, 2.7 सर। 1.8। ठीक है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, सो अगेन आपने नेगेटिव साइन डाल दिया। ओके, कमिंग टू 500 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, वुड इट क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट z एक्सिस? यस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.9। क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? काउंटर क्लॉकवाइज, पॉजिटिव साइन आ गया। 600 न्यूटन फोर्स, वुड इट क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट z एक्सिस? नो सर, 900 Newton force, would it create any moment about z axis? नो, 450 Newton force, यस, perpendicular distance कितना है इसका? 0.9 मीटर्स, 0.9। Clockwise, counter clockwise? सर काउंटर क्लॉकवाइज, Counter clockwise. So is the equation complete now? जी सर, चलें, so this would be my equation number 6. अब सॉल्व किस तरह करेंगे सिस्टम को? 6 इक्वेशन, 6 अननोन। इक्वेशन 2 से cy की वैल्यू मिल गई, ठीक है। इक्वेशन 5 से cz की वैल्यू मिल गई। उसके बाद चूंकि cy मिला हुआ है, इक्वेशन 6 से bx की वैल्यू मिल जाएगी। bx मिल गया, इक्वेशन 1 से आपको ax मिल जाएगा, ठीक है। अब बाकी 3 और 4 बचे, जो 2 अननोन्स हैं, वो आप वहां से डिटरमिन कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो, पूछना चाहें, काइंडली भी पूछ सकते हैं। Shall we move forward? किसी का कोई सवाल तो नहीं है? Okay, so kindly अपने mics mute कर दें. Let us move to the next problem of the exercise, which is problem 5-72. Again, we have a shaft which is being supported at point A, B, and C by smooth channel bearings, and we have two things which are being applied on this shaft. One is a force of 450 Newton, and other one is a couple moment of 300 Newton meter being applied along the y-axis in a clockwise direction. We need to determine the support reactions at point A, B, and C. So starting with point A, what is your
thinking what should be the reaction types at AX and AZ. AX and AZ, since this general bearing is being mounted along the y-axis. So अगर हम ट्रांसलेशन के हवाले से पहले बात करें, ये AX और AZ आपके पास सपोर्ट रिएक्शन आ जाएंगे at point A. Okay, moving to point B, since this bearing is also mounted along the same axis, so we are going to get the same type of support reactions BX as well as BZ. यहाँ तक क्लियर है रेक को? Okay, coming to point C, जनरल बेयरिंग जो C पे है वो किस एक्सिस के अलोंग लगा हुआ है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। तो हमें रिएक्शन सपोर्ट कौन से मिलने चाहिए? CZ एंड CY। ओके, सो अननोन्स कितने हो गए हमारे पास? 6। ऑलरेडी 6 अननोन हो गए। सो क्या हम कपल मोमेंट शो करेंगे कहीं? नहीं सर। वजह ये है कि आपके पास ये तीनों मल्टी पॉइंट सपोर्ट हुई हुई है, आपके पास ये शाफ्ट, तो इसलिए आपके पास कपल मोमेंट जो है वो नहीं आएंगे एज अ सपोर्ट रिएक्शंस के तौर पे। ओके, सो अगेन स्टार्टिंग विद राइटिंग द equations, starting with force summation fx equal to 0. The forces which are acting along x-axis, one is ax, the other one is bx. That should be equal to 0. This would be my equation number 1. What about y summation forces? कौन सी y में forces आनी चाहिए? एक तो cy आएगा, और कोई फोर्स भी आएगी y इक्वेशन में? सर ये 450 का y कंपोनेंट। 450 का y कंपोनेंट, तो कौन सा कंपोनेंट होगा? 450 sin 45। cos सर 450 cos सर। बेसिकली आप इस कंपोनेंट की बात करें जो मैंने ग्रीन से शो किया है। सो इट इज बेसिकली 450 cos 45 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सर। positive. So this would be my equation number 2, cy plus 450 cos 45 to be equal to 0. Coming to the third equation, which is summation fz equal to 0. z डायरेक्शन में एक तो मुझे az नजर आ रहा है, साथ में मुझे bz नजर आ रहा है, प्लस cz नजर आ रहा है। इसके अलावा भी कुछ z डायरेक्शन में फोर्स आ रही है? sin 45। सिर्फ 450 sin 45। तो ये मैंने ब्लू से इस कंपोनेंट को शो कर दिया है। सो इट इज बेसिकली 450 sin 45 पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। Since it is directed towards the negative axis, negative z axis, so I'm going to include it with a negative sign in this equation and call it as equation number 3. So force summation आपने लिख ली तीनों एक्सिस के along x axis, y axis and z axis. Any question regarding any one of these equations आप अभी पूछ सकते हैं, so that we can move on to the moment equations now. Okay, starting with the first moment equation, which is summation mx equal to 0. Would ax or az create any moment about x-axis? No sir. bx create करेगा moment? No sir. What about bz? Yes sir. 0.8. What is the perpendicular distance? 0.8. And as we have discussed so many times, it would create a counterclockwise moment about the x-axis. So we are going to include it with a positive sign. या पहली टर्म है तो आप positive sign को शामिल नहीं करते. What about cy now? Would it create any moment about x-axis? Yes sir. अच्छा, कितनी perpendicular distance cy का कितना है x-axis से? 0.4 मीटर। 0.4 कि 0.6? सर 0.6 तो lateral है ना। ठीक है. So it is 0.4. Positive or negative? Negative sir. Negative, because it is creating clockwise motion, clockwise rotation about x-axis. What about CZ? सर ये CY कैसे करेगा? CY कैसे करेगा? कहाँ से आप इस CY को देख रहे हैं? आप बेसिकली इस व्यू से अगर देखें तो आपको
जो चीज नजर आएगी वो क्या व्यू नजर आएगा, ये आपका वाईजी प्लेन है ना, और एक्स एक्सिस आपकी बेसिकली इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ऐसे ही है। यस तो सर। सी वाई आपका ये फोर्स है, isn't it? यस सर। So would it create any moment about this x axis or not? जी आप बताएं, करेगा कि नहीं करेगा? ये डिस्टेंस आपको 0.4 के 1 है। ठीक है सर। ठीक है, तो देखें जब भी आप कहीं किसी फोर्स या मोमेंट के हवाले से फंस रहे हो ना, ट्राई टू कन्वर्ट दिस 3 डायमेंशनल फिगर इनटू 2 डायमेंशन, उससे आपकी बहुत सारी मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। वैसे तो विजुलाइज आपको 3 डायमेंशन में करना आना चाहिए, लेकिन अगर आप 3 डायमेंशन में थोड़ा सा फंस रहे हैं तो कोशिश करें कि इस 3 डायमेंशनल फिगर को 2D में कन्वर्ट करके थोड़ा सा विजुलाइज कर लें इसको, तब आपकी जो कंफ्यूजन है, जो डाउट है, वो क्लियर हो जाएगी। Okay, anything else which I should include here? What about CZ? Would it create any moment about x-axis? जी सर। यस सर। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1.2. 1.2. And the direction of movement of CZ? काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज। सो इसको भी मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख लिया। चलें अब जरा क्रूशियल पार्ट के ऊपर आते हैं, ये तो सपोर्ट रिएक्शंस की वजह से थी। नाउ कमिंग टू द अप्लाइड 450 न्यूटन फोर्स, इसके दो कंपोनेंट्स आ गए। द वन अलोंग द वाई एक्सिस इज बीइंग शोन टू यू एज ग्रीन वन, द अदर वन अलोंग द जी एक्सिस, रादर नेगेटिव जी एक्सिस, बीइंग शोन टू यू विद अ ब्लू कलर। सो टेल मी, दिस ग्रीन कंपोनेंट would create any moment about x axis or not? यस सर। क्रिएट करेगा ग्रीन कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अलोंग है? यस सर। चले बिकॉज़ इसको मैं 0.4 कंपोनेंट को मीटर अगर लिख दूं 450 cos 45, ये उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस कंपोनेंट का? 0.4। 0.4। ये क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट करेगा एक्स एक्सिस के अबाउट या काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज करेगा, सो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ मेंशन कर दिया। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। जी सर। ओके, व्हाट अबाउट दैट ब्लू कंपोनेंट? यस सर, वो करेगा, वो भी करेगा। तो ब्लू कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड है 450 sin 45, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? 1.2। 1.2। क्लॉकवाइज मोमेंट ये बना रहे हैं या काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। सो इसको मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा। नाउ माय इक्वेशन इज कंप्लीट एंड लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 4। सबको क्लियर है ये मोमेंट की टर्म्स जो हमने समेशन mx में लिखी है, या कोई डाउट है किसी को? Okay, moving forward, summation my equal to 0. Would ax or az create any moment about the y-axis? नो सर। Would bx or bz create any moment about the y-axis? नहीं सर। Okay, would cy create any moment about the y-axis? नो सर। So cz क्या वो बनाएगा मोमेंट? जी सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.6, मोमेंट का डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ लिख लेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द 450 न्यूटन कंपोनेंट्स, वुड दिस ग्रीन कंपोनेंट दैट इज अलोंग द वाई एक्सिस क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस? नो सर। रीजन? सर वो पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन। पैरेलल है। ओके, व्हाट अबाउट दैट ब्लू कंपोनेंट? सर ब्लू कंपोनेंट नहीं करेगा। वजह? सर वो एक्सिस को पास कर रहा है। वो वाई एक्सिस को पास कर रहा है। तो इट मींस कि क्या मेरी ये इक्वेशन कंप्लीट है या इसमें कोई हम टर्म मिस कर गए हैं? सर -300 डाल। -300 आएगा, विच इज द अप्लाइड मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। और माइनस साइन क्यों आएगा? बिकॉज दैट 300 न्यूटन मोमेंट इज बीइंग अप्लाइड इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट वाई एक्सिस। सो आई एम गोइंग टू इंक्लूड -300 here in this equation and called it as equation number 5.
एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग समेशन एम वाई जो आप पूछना चाहें? Okay, coming to the final question, summation mz. Would ax or az create any moment about the z-axis? No sir. Would bz create any moment about the z-axis? नहीं sir. bx bx sir. bx बनाएगा 0.8 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और डायरेक्शन इसका क्लॉकवाइज होगा, सो आपने नेगेटिव साइन इसके साथ शो कर दी है. ओके, वुड cy क्रिएट एनी मोमेंट अबाउट z एक्सिस? Yes sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है cy का? 0.6. 0.6 and the direction is again going to be clockwise. ठीक है. Would cz create any moment about the z axis? No sir. 450 न्यूटन के जो दो कंपोनेंट्स हैं नहीं सर, वो भी नहीं. वो भी नहीं बनाएंगे because the green component is passing through the z axis, the blue component is parallel to the z axis. It means that this equation is now complete. I can name it as equation number 6. अब इस सिस्टम को सॉल्व कैसे करेंगे? एक तो तरीका ये है कि कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस. अदरवाइज अगर मैनुअली सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व किया जाएगा? सर क्वेश्चन 5 से CZ मिल जाएगा. इक्वेशन 5 से हमें CZ मिल गया और इक्वेशन 2 से CY मिल जाएगा. और सर ये इक्वेशन 4 में CZ CY हम डाल देंगे, BZ मिल जाएगा. ओके, CZ मिल गया, BZ सॉरी. जी सर. फिर सर 6 में डालने से bx मिल जाएगा. 6 में डालने से bx मिल गया, 1 में डालने से ax मिल गया. तो अब दो अननोन बचे, वो आप इक्वेशन 3 और 4 से जो है वो निकाल सकते हैं. आई होप के सॉल्व कर लेंगे अब सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को आप. जी सर एक क्वेश्चन था. पूछें. सर ये जो हम अक्सर ले रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव का, सर कभी हम एक्स एक्सिस के साइड से देख रहे हैं, कभी हम वाई एक्सिस के साइड से, तो हमें कब पता चलेगा कि हमने किस साइड से देखने के, एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज? देखिए, आप बेसिकली जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ले रहे होते हैं उस एक्सिस को देखने के लिए आप बेस्ट व्यू यूज करते हैं. मसलन आपने मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट कैलकुलेट करनी है तो बेस्ट व्यू क्या होगा इसको देखने के लिए? आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से खड़े होके देखेंगे ना कि कौन कौन सी फोर्स एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट क्रिएट कर रही है. यस सर, राइट. तो इस तरह आप जज करते हैं. इसी तरह सपोज आपने मोमेंट्स वाई एक्सिस के अलोंग कैलकुलेट करनी है तो फिर आप उस हवाले से देख रहे होंगे. तो जनरली ये कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. आपने अगेन विजुअलाइज करके अपने जहन में विजुअलाइज करना है कि मैं कहाँ से खड़े होके इसकी मोमेंट को जज करूंगा. ओके सर, राइट सर. सर अगर वो नेगेटिव हो जाए तो वो एंड में हम उसकी डायरेक्शन रिवर्स भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल. देखें, अब हमने ये सॉल्व किया और इत्तेफाक से किसकी डायरेक्शन नेगेटिव आई है? अगर आप और से देखें इन जवाबों को तो क्या क्या नेगेटिव आ गए? सर CY, BZ सर BZ एंड AX. ठीक है, तो तीन हमारे पास नेगेटिव आए. तो सिर्फ हम ये कह सकते हैं, यहाँ लिख दें या ना भी लिखें, तो आपने जो डायरेक्शन अज्यूम किया ये तीनों उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं. अब ये नहीं होगा कि आप दोबारा इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्री बॉडी डायग्राम पे बनाएं और फिर सारी इक्वेशंस को रीराइट करें. कोई जरूरत नहीं है वो करने की. सिंपली आप कह दें कि ये तीन अज्यूम डायरेक्शन जो है वो रिवर्स होंगे फ्री बॉडी डायग्राम पे. Now coming to slightly difficult problem. Although figure इसकी difficult है, अगर आपको समझ आ जाए तो ये ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है. This is the last problem of this chapter. इसके बाद फिर हम आज का टॉपिक जो है वो ख़त्म कर देंगे और इंशाल्लाह कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे. ओके, 5-73 है. You need to determine the force components acting on the ball and socket joint at A, the reaction at the roller at B, and the tension on the cord CD needed for equilibrium of this quarter circle plate. ठीक है, तो आपके पास एक अदद क्वार्टर सर्कल प्लेट है और आपने इसके सपोर्ट रिएक्शंस जो है वो डिटरमिन करने हैं एट A, B and C. A के ऊपर बॉल एंड सॉकेट लगा हुआ है, B के ऊपर रोलर लगा हुआ है और C के ऊपर एक अदद केबल के साथ आपने इसको सपोर्ट किया हुआ है. आई होप क्वेश्चन क्लियर है. 3 अदद फोर्सेस आप अप्लाई कर रहे हैं. 350 न्यूटन फोर्स, 200 न्यूटन फोर्स जो पॉइंट बी पे भी अप्लाई हो रही है. और चले मैं जस्ट फॉर रेफरेंस अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास पॉइंट ई है तो पॉइंट ई के ऊपर भी ये 200 न्यूटन फोर्स जो है वो
अप्लाई की जा रही है। ठीक है, सवाल हर एक को क्लियर हो गए? Okay, so first of all, we need to draw the free body diagram of this quarter circle plate. So the axes are being shown to you. What should be the support reactions at A? Sir, तीनों axis. So ball and socket joint laga hua hai. It will give me AX, it will give me AY, and it will give me AZ. ठीक है, तो ये मुझे AX, AY और AZ जो है वो मिल गए एट पॉइंट A के ऊपर. What about point B? What type of reaction shall I get there? Normal. So I'm going to write it as BZ here. उसको आप NB लिख लें या BZ लिख लें, जिस तरह भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें आप कर सकते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम पे और कुछ भी आना चाहिए. Sir, tension. टेंशन आ जाएगी, तो इसको मैं TCD के तौर पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ. दैट इज टेंशन इन द केबल फ्रॉम C to D. Then I have 3 applied forces, 350 Newton, 200 Newton and 200 Newton. So the free body diagram is now complete. इसमें हमें weight के हवाले से नहीं कहा गया था. अगर weight होता तो फिर हमें उसका center of geometry भी या center of gravity दिया होता, हम उसको show कर सकते थे. चूंकि weight का जिक्र नहीं है, so let us not represent weight on this free body diagram. So starting with summation fx equal to 0, आपके पास कौन सी forces x direction में act कर रही हैं? AX और कोई फोर्स तो नहीं है x डायरेक्शन में? नहीं sir. Okay, what about the y direction forces? AY. Only AY is acting along the y direction, so I'm going to write AY to be equal to 0. It means कि मेरे पास दो unknowns तो जो है वो determine कर लिए मैंने through simple inspection of these forces. Okay, moving to the third force equation, summation Fz equal to 0. What are the forces which we can see acting along the z direction here? सर AZ BZ AZ, BZ और -350 Plus TC tension. plus TCD. Anything else? -350. minus 200. Minus 350, minus 200, minus 200, तो इसको इकट्ठा ही करके लिख लेते हैं. 350, 750 हो जाएगा. So let it write as minus 750 to be equal to 0. Let me call it as equation number 1. Clear है? Yes, sir. Okay, now coming to the moments equation and starting with summation mx equal to 0. Would AX, AY or AZ create any moment about the x-axis? No, sir. Would BZ would create any moment about the x-axis? Yes, sir. Yes, sir. इसका perpendicular distance 3 है. Clockwise होगा या counter clockwise होगा? काउंटर क्लॉकवाइज Counterclockwise. तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ हमने रिप्रेजेंट कर लिए. Would TCD create any moment about x-axis? No, sir. Okay, would this 350 Newton force create any moment about x-axis? No, sir. Would the 200 Newton force acting at point B create any moment about the x-axis? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 Three. हुआ और ये किस डायरेक्शन में मूवमेंट बनाएगी? Clockwise. क्लॉकवाइज. तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ शो कर दिया. ओके, नाउ कमिंग टू द फोर्स ऑफ 200 न्यूटन एक्टिंग एट पॉइंट E, would it create any moment about the x-axis? If yes, what should be its perpendicular distance?
चलिए करेगी तो सही। करेगी तो सही। इसको जरा विजुलाइज करें 2D में। कहां से देखूंगा मैं? टॉप व्यू से। ये Yes, एक्स है, ये वाई है, ऐसे ही है टॉप व्यू से देखने से जो मुझे एक्सेस नजर आएंगी। यस सर। Yes, sir. ये वो क्वार्टर सर्कल है जिसकी बात हो रही है, ठीक है। पॉइंट Yes, sir. ई पे लोकेटेड है समवेयर हियर, ऐसा ही है। यस सर। टॉप व्यू समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसको मैं टॉप से देख रहा हूँ। यस सर। यस सर। Yes, sir. रेडियस Yes, sir. क्वार्टर सर्कल का क्या है? 3 मीटर, 3 मीटर। इट मीन्स कि ये वाली लाइन भी 3 मीटर होगी, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा चलें, अब ये एंगल आपको गिवन है विच इज 60 डिग्रीज। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट ई का एक्स से बनता कितना है? वो ये वाला पॉइंट बनेगा ना, ऐसे ही है। यस सर। ये डिस्टेंस अब जरा बताएं ज्योमेट्री देख के क्या होना चाहिए? सर 63 3 into मीटर 16 cos थीटा। कॉस होगा, साइन होगा? Sir. Fine होगा. साइन साइन। क्योंकि एंगल आपका एक्स से गिवन है, तो अब ये डिस्टेंस वाई के अलॉन्ग है, तो आपके पास 3 sin 60 आ जाएगा, isn't it? यस सर। ये बात हर एक को समझ आ गई है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने इस 200 न्यूटन वाली फोर्स का कैसे निकाला है? Yes, sir. सो अब अगर मैं इसकी मोमेंट देखूं, आपके पास ये 200 न्यूटन फोर्स थी, सो द फोर्स वाज 200 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 3 sin 60 आया। क्लॉकवाइज होगा या काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट? Clockwise. क्लॉकवाइज, तो मैंने इसको नेगेटिव साइन के साथ यहाँ इंक्लूड कर दिया। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? सर क्लियर है सर। ये बता दें साइन 60 और cos 60, साइन क्यों लिया और cos क्यों नहीं लिया? देखिए कॉस कंपोनेंट क्या होता है बेसिकली? ये वाला डिस्टेंस जो है ये 3 cos 60 होगा, isn't it? यहाँ से लेके यहाँ तक, यस यस सर। ठीक है। तो साइन आपने तो बेसिकली ये डिस्टेंस लेना है ना कि एक्स एक्सिस से Right, sir, कितना right. परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना रही है, तो ये 3 sin 60 हो जाएगा। ओके सर राइट, आगे समझ गया। थैंक यू। चलें, सो किसी को अब तो कोई डाउट नहीं है। जब भी मैंने जिस तरह कहा था, आप अगर 3 डायमेंशन में थोड़ा सा विजुलाइज करने में आपको मुश्किल पेश आ रही है, कन्वर्ट दैट फिगर इनटू 2 डायमेंशंस और फिर आपकी काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन अगेन कन्वर्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा ड्राइंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा कि 2D में मैं कहाँ से देखूँ तो मुझे ये बेस्ट व्यूज़ का विजिबल होगा, ठीक है। Okay, so this was summation mx. Moving forward to our next equation, which is summation my. क्या ax, ay, az y axis के about moment बनाएगा? ax बनाएगा? No, sir. ay बनाएगा? No, sir. az बनाएगा? Yes, sir. तो az का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 है। क्लॉकवाइज बनाएगा या काउंटर क्लॉकवाइज? Clockwise. Clockwise, so we are going to include it with a negative sign here. Okay, would this 350 Newton applied force create any moment about y-axis? Yes, sir. Perpendicular distance 2 आ जाएगा इसका, और positive negative पॉजिटिव सर। positive, counter clockwise, so आपने positive sign के साथ include कर लिया। Would TCD create any moment about y-axis? No, sir. Would BZ create any moment about y-axis? No, sir. Would this 200 Newton force at point B create any moment about y-axis? at B, no sir. No. What about 200 at E? Yes sir. वो कितनी बनाएगी? अब 200 तो फोर्स हो गई, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? अब मैं फिगर वो रब कर चुका हूँ जो 2D में बनाई थी।
इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से अब कितना होगा अगर आप दोबारा विजुलाइज कर 3 cos 60 हो जाएगा। ये आपके पास वो फिगर है, ये हमारे पास पॉइंट E था। सो अब y एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस है, इजंट इट? ये 3 है, ये 60 है, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा? 3 cos 60, isn't it? Yes, sir. तो आपने 203 cos 60 कर लिया विद अ पॉजिटिव साइन, आपके पास इक्वल टू 0 आ गया। हम इसको इक्वेशन 3 कहते हैं। नाउ द सोल्यूशन इज सिंपल। आप इक्वेशन 1 2 3 तीन अननोन्स हैं, तीनों के लिए सॉल्व करें। यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज 3 अननोन्स। क्लियर है? Yes, sir. Okay, so with this, our chapter number 5 is now complete. I'm going to stop the lecture here because almost time खत्म होने वाला है। अच्छा, आप में से काफ़ी लोगों ने चूँकि थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, tomorrow we are going to have our quiz number 1 on LMS. आपसे मैंने कोड्स ऑलरेडी शेयर कर दिया है स्टैटिक्स का। All of you are requested to join the statics team on LMS with that code. आपका क्विज exactly 4:30 पे स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 20 मिनट्स का क्विज होगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, और जिस तरह मैंने शुरू में भी रिपीट किया था, द क्विज इज गोइंग टू बी इन अ सीक्वेंशियल मोड। सीक्वेंशियल मोड से क्या मुराद है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का जब आपने राइट चॉइस सेलेक्ट करके आप आगे चले गए तो वापस नहीं आ सकते, ठीक है? तो वंस यू हैव सबमिटेड क्वेश्चन नंबर 1 यू कैन नॉट गो बैक टू क्वेश्चन नंबर 1। तो इस बात का ख्याल रखें, थोड़ा सा सुकून के साथ सॉल्व करें। 2 क्वेश्चन हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन हैं, आपको एम्पल टाइम मिलेगा 20 मिनट्स। वो अगर कोई किसी को आता है तो वो 10 मिनट में कर सकता है। सो एम्पल टाइम है, कोशिश करें कि सुकून के साथ उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें और सबमिट करें। क्लियर है? कोई चीज़ जो आप पूछना चाहें? सर क्विज का सिलेबस रिपीट कर दें सर। क्विज जो है वो आपका, जिसमें से असाइनमेंट आपने सबमिट करवाई है इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशन, उससे आपका क्विज होगा। रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम इन 2 डायमेंशन, चैप्टर नंबर 5 का जो पहले हमने टॉपिक्स पढ़े हैं इससे पहले। सर जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम 2 क्वेश्चन आते हैं तो हम पहले मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अगर हमें समझ नहीं आ रहा, हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ हम दोबारा नहीं आ सकेंगे? जी, आप वापस नहीं आ सकेंगे। यस सर, ओके सर। तो इसलिए जो समझ आता है आप सॉल्व करके उसी वक्त लिखें और फिर आगे जाएं। ये भी ना करें कि 20 के 20 मिनट एक क्वेश्चन पे ही लगा दें। टोटल 20 मिनट्स का है, तो ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने में सारा टाइम लगा दें। अपना टाइम डिवाइड कर लें, 10-10 मिनट, 10 मिनट तक होता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज तुक्का छोड़ के आगे मूव कर जाएं। एमसीक्यू आपको न्यूमेरिकल को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो चॉइसेस आपको नजर आ रही होंगी 4, उसमें से आपने बेस्ट चॉइस को जो है या करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना होगा। ओके सर। चलिए ठीक है। So any other thing which you want to ask? No sir. चलिए, so we are going to stop at this point, और जो है वो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप कर देता हूँ। So let me stop the recording first.